ठीक है। अच्छा जी, ओके। जुल्करनैन, आप श्योर आपने कुछ प्रेजेंट करना था लास्ट सेशन में भी, और आप कुछ डिसाइड कर लिया था आपने, और आपकी भी मुझसे बात हुई थी। आप कह रहे थे कि मैं अगली क्लास में आपको प्रेजेंट करूंगा अपना काम। तो क्या आपका इरादा है? कुछ काम किया आपने या नहीं किया अभी तक? यस सर, हो गया काम, मैंने आज प्रेजेंट करना है तो लेट्स स्टार्ट विद यू। लेट्स सी बाकी लोग सिस्टम में इन हो रहे हैं। आप अपना काम जो है वो अगर दिखाएं करना। मुझे, और उस पर डिस्कशन करते हैं। सर ये मुफस्सिर के लैब पे करता हूँ मैं, क्योंकि मैं ओके, क्लास में आ गया था। ओके। ठीक है, चलें। आई अलाउड यू। जी, बिस्मिल्लाह अस्सलाम कीजिए। वालेकुम, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक। सर माय टॉपिक इज architecture for Internet of Things to minimize human intervention. My supervisor is Dr. Sadaf Tanveer. Introduction: nowadays, network encompass billions of nodes, including typical devices ranging from computer, laptop, mobile phones, and workstation. Everyday objects like car, air condition, light, bulb, refrigerator working together. These devices, these these devices have become an indivisible part of our life. Internet of Things (IoT) is thus made up of the several devices that interwork as a part of a single information system that carries out tasks on its own with minimized human assistance.
sorry, my first paper relevant of this इसमें सर virtualization techniques होती हैं, virtualizing hardware, virtualizing network, virtualizing data, IoT, VSN, monitoring of environment, collection, sensing, collecting census data, delivering data. The cloud-based virtualization approach co-effective solution based on cloud computing on virtualization techniques to facilitate integration with the IoT, WSN, sensor cloud computing, cloud computing providing various services type sensor iCloud virtualization, a combination of various techniques, IoT, VSN, WSN, cloud computing and virtualization technique to improve performance of IoT system. In next paper, इसमें जो होती हैं डिवाइसेस होती हैं वो इंटरलिंक होती हैं फोग के साथ, फोग नोड्स, ठीक है, वो फिर डायरेक्ट सर्वर के साथ जो क्लाउड डेटा सेंटर होता है वो उसके साथ इंटरलिंक होती हैं. थर्ड पेपर इसमें जो स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं उनका डेटा स्मार्ट गेटवे के साथ लोकल टाइम एनालिसिस, प्री प्रोसेसिंग, फिल्टरिंग होता है. नेक्स्ट इसमें क्लाउड डेटा सेंटर, ग्लोबल डेटा एनालिटिक्स, स्टोरेज. Gap analysis. If the system cannot provide user with a device, then the user task many hurt. We try to reduce human interaction with the system by the anticipating the properties and thus objects that are most relevant to user current request and return the alternate object that link the same services when an exact object is unavailable. This increases the robustness of the research engine in finding the devices. Research objectives: to develop a research engine that could find smart objects, to develop an architecture that use navigation prediction on user history and ant colony optimization for the accurately predicting object of user interest. Proposed methodology इसमें human interact करता है, इसमें होता है query analyzer, SQL server जो improving database, then इसमें option engine. There are two options to implement this, divide the capabilities information of an object into two parts. इसमें primary server होता है जो you find exact match. If you don't get exact match, then it find approximate object. Then होता है context updater. It is used to update the context stored in database. For example, profile information of the user. And third one is a context extractor. Context extractor is awareness make IoT system self-sufficient. It don't depend on user input for the time to time. It's carry out work. Then SEO based machine unit. It use a algorithm. And then database, user database consists of his profile information, object uses history, and it's become maintain a data about user. आगे सर ये रेफरेंसेस हैं जो मेरे. मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर. ये तुमने खुद प्रेजेंटेशन बनाई है या किसी को बताया था और उसने बना दी आपके लिए? सर मैंने खुद बनाई है. मुझे तो बहुत सख्त शकूक और शुबहात है कि ये प्रेजेंटेशन तुमने खुद बनाई है. सर खुद ही किया वो जो. Especially looking at your capabilities जो आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहे हो, मतलब अगर आपने खुद बनाई हो तो आप तो चीजें जो स्पेलिंग्स हैं वो भी नहीं ठीक पढ़ रहे बाज़ जगहों पे.
तो बी वेरी फ्रैंक विद मी, बनाई है या नहीं बनाई है? नहीं सर, खुद खुद बनाइए सर। कुछ खुद बनाई है, अभी कुछ खुद हो गई है, नहीं बाकी नहीं कुछ नहीं सर, किसने बनाई है? हेल्प जरूर लिया है, मतलब इधर यूनिवर्सिटी में ही आके बनाते थे। किससे हेल्प ली है? मतलब मैं और मुफस्सिर इधर लैब में ही आते थे। अच्छा, फिर मुफस्सर तुम्हारा लगता है बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने सारी बना दी है तुम्हें ये। नो सर, वो अच्छा, तो गैप एनालिसिस वैसे किसे कहते हैं तुम्हारे ख्याल में? सर वो जो रिसर्च पेपर होता है उसमें जो हमने बेस बनाया होता है उसमें जो चीज़ें रह जाएं। जो चीजें रह जाएं। अच्छा, तो अभी ये जो तुम्हारा इधर स्टेटमेंट लिखी हुई है गैप एनालिसिस की, इसमें तो ऐसी कोई चीज़ तुमने नहीं लिखी हुई कि जो आपके पेपरों में रह गई हो और आप चाहते हो कि जी मैं वो करना चाहता हूँ। पढ़ो जरा सारे की, और उर्दू तर्जुमा भी अगर जहन में लाओ अपने, तो यहाँ ऐसी तो कोई चीज़ तुमने नहीं लिखी हुई। सिस्टम connect provide user with the device and user talks may or we try to reduce human interaction with the system and respecting the property the access. सर इसमें वो जो लिखा है we try to reduce human interaction with the system। इसको जरा लिंक करो ना अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ। ऑब्जेक्टिव्स में तो आप जो कह रहे हो वो यहाँ ऐसी कोई बात आपने नहीं की हुई। यानी इससे आप, चलो मैं आपसे अगर दोबारा पूछूं यही इसी सेम जो आपके गैप एनालिसिस है इसका, अगर तुम मुझे बस ये बताओ जी कि प्रॉब्लम क्या है। चलो इसको सिंपलीफाई कर दो, ये तो 4 लाइनें लिखी ना, आप मुझे एक लाइन में बता दो कि इधर क्या कहना चाह रहे हो, मसला क्या है जिसको सर आप इधर मसला ये है समझते हैं। कि जो ह्यूमन इंटरेक्ट करता है बार बार, तो उसका खुद ही वो इतना एफिशिएंट हो जाए कि बार बार यूजर की इंटरेक्शन नहीं खत्म हो जाए। जैसे लेट्स सपोज अगर हम करते हैं गूगल पे कोई सिमिलर वर्ड में जिसमें AEIO गलत स्पेलिंग भी लिख दे, तो वो इतना एफिशिएंट हो कि वो खुद ही उसको कर दे। खुद ही जल्दी उसको कर क्या दे कि कर ये ले? मतलब उसका कि ये इसके सिमिलर जो वर्ड हैं वो ये हैं, तो वो उसका रिजल्ट सिमिलर दे दे। अच्छा, रिजल्ट सिमिलर दे दे या रिजल्ट ठीक दे दे, मतलब गलती पकड़ ले और मैं गलती को उसके ठीक कर दे? बाद बिल्कुल वो क्लोज कर दे, ठीक करके वो। अच्छा, ये चाहते हो आप? तो यानी फिर इससे इसके करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर ये करना चाह रहे हो तो क्या होगा, किस क्या तरीका है इसका फिर अब? फिर अभी तो इतने किया, वो जो बेस पेपर था उसके मुताबिक जो मुझे समझ आई है पढ़ के वो बेस पेपर सिर्फ पढ़ना तो नहीं था, पढ़ना तो आपका बाकी पेपर्स भी थे। वो ये जो गैप एनालिसिस होता है ये सिर्फ बेस पेपर का नहीं होता, ये कंप्लीट लिटरेचर रिव्यू का होता है। हम्म, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 सर। तो अच्छा चलो, ये जो आपने इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाई है रिसर्च पेपर्स की, ये सारी खुद बनाई है? यस सर, ये मेरे पास बेस पेपर हार्ड कॉपी में भी पड़े हैं। वो मतलब वो जो पेपर है वो मैंने मेरे पास है। ओके, प्रपोज्ड जो, अच्छा ऑब्जेक्टिव्स पे आओ जरा, ऑब्जेक्टिव्स जो आप दिखा रहे थे सारे दिखा दो। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, यही है सर। जी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं या और भी हैं? सर यही दो। अच्छा ठीक है, गुड, 2 हैं। तो ये बता रहा है जी कि पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आप एक सर्च इंजन बनाना चाहते हैं विच कुड यस फाइंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा जी, और दूसरा चाहते हैं कि जी एक आर्किटेक्चर हो जो कि नेव बेजियन प्रेडिक्शन यूज करे और फिर आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन के साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्ट्स को प्रिडिक्ट करे। तो दोनों यस सर। एक ही है ना, दोनों एक ही चीज है। अब यस जो सर। सेकंड वाला है वही बेसिकली आपका फर्स्ट को कवर कर रहा है, पहला भी वही है। यस सर। ऑब्जेक्टिव तो एक ही हुआ ना। आप ये इस ऑब्जेक्टिव को ब्रेक डाउन कर सकते हो कि जी पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू डेवलप एन आर्किटेक्चर विच कैन यूज नेव बेजियन प्रेडिक्शन ऑन यूजर हिस्ट्री। फिर दूसरा आप कह सकते हैं टू मेक यूज ऑफ आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन फॉर एक्यूरेटली प्रेडिक्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूजर इंटरेस्ट। ओके सर। ठीक है।
और फिर आप तीसरा कह सकते हैं जी कि एक परफॉर्मेंस एवेल्युएशन टू कैरी आउट परफॉर्मेंस एवेल्युएशन ऑफ दिस आर्किटेक्चर टू वेरीफाई इट्स परफॉर्मेंस, एक ये तीसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका। सही है। तो अभी आप ओके ये सर। थीसिस फिर करना चाह रहे हो, नाउ यू हैव फाइनलाइज्ड के यू विल डू द थीसिस। सर थीसिस तो मैं करूंगा, लेकिन जो मैम ने टास्क दिया था ना, वो हम्म। फिर आपका जो टास्क थे वो उससे वो काफी आर्टिस्ट रहा था, तो मैम ने ये कहा कि जो सर के टास्क ने पहले वो करें, साथ साथ मैम का भी करूं। उन्होंने मुझसे ब्रीफ कोई नोट्स बोला था कि करें। कुछ पेपर उन्होंने इसके रेलिवेंट भी दिए थे, तो वो फिर कह रहे थे कि फिर जो सर के टास्क हैं वो फिर काफी रह जाएंगे। अच्छा, नहीं मैं खैर वो सवाल तो आपसे कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप बस थीसिस करोगे और थीसिस में अब आपने एग्रीमेंट कर लिया है सुपरवाइजर से, तो वो तो जारी बात है, यस ठीक है। टास्किंग तो मैं तो आपको सब्जेक्ट के लिहाज से दूंगा ना, वो आपको थीसिस के लिहाज से देंगी, तो फर्क तो आएगा। सर, सही है सर। तो वो आप बिल्कुल उनके साथ इन टच हो जाएं। ठीक है अभी ये बताइए कि ये जो आप काम करना चाह रहे हैं ये आप किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, सर। कौन अभी सी? तक ये इस पे नहीं, अभी मैम ने बताया, मैम ने खाली कहा था कि आप इसके ना ब्रीफ मेरे पास लेके आए नहीं, ये तो मैं नोट्स। आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है। यू शुड नो कि आपका डेटाबेस क्या होगा, यू शुड नो कि मेरी लैंग्वेज कौन सी होगी, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, ये तो आपने मुझे बताना है। उनका ताल्लुक इससे होना तो चाहिए, लेकिन चले वो नहीं पूछ रही, उनकी मर्जी। बट सर उन्होंने आई। बात की थी इस पे, हाँ, लेकिन वो कह रहे थे चलें आप अभी पहले मुझे इसके ऊपर नोट्स दें ना ब्रीफली, फिर उसके बाद फिर मैं आपको आगे गाइड करूँ। तो मैं मैं अगेन आपको, सवाल मेरा उनसे रिलेटेड है ही नहीं, मैं तो आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपका जवाब मेरे सवाल का क्या है कि ये सारा कुछ किस सिस्टम पे, किस प्लेटफॉर्म पे, किस लैंग्वेज में, किस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है। डेटाबेस कहाँ से आएगा? जब आप ये एक बनाओगे एक सर्च इंजन, तो C++, .NET, पाइथन, किस पे बनाओगे? नेव बेस थ्योरम, नेव बेस जो प्रोडक्शन है वो किस पे इम्प्लीमेंट करोगे? वो यूजर हिस्ट्री कहाँ से आएगी जिसको आपने लेके चलना है? आर्ट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन जो है ये किस प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करोगे? ये मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। चीजें हवा में थोड़ी डिसाइड कर लेनी है कि बस खुद ही हो जाएंगी। खुद तो नहीं होती, या होती हैं? नो सर। मुफस्सिर से वो करवाओगे? नो सर। तो खुद करनी है तो सोचना है ना कि क्या करूँ मैं, किस तरह से करूँगा। इस सवाल के जवाब जरा ढूंढे ना आप इस वीक के अंदर, ताकि अगले हफ्ते में मुझे जवाब दीजिएगा आप। ठीक ठीक है आगे चलो, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बाद क्या चीज़ दिखा रहे थे आप? हाँ, ये जो सारा कुछ है ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा था आपसे कि ये जो आप प्रपोज मेथोडोलॉजी है ये कैसे होगी, ओरेकल पे बनाओगे, क्या क्या करोगे, मतलब ये सिर्फ ये कर देना काफ़ी नहीं है। सर। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो ज़रा सोचनी है। ठीक है सर। ये सारी डायग्राम आपने कट पेस्ट की है बेस पेपर से? सर यस सर, ये बेस पेपर। तो बेस पेपर की कट पेस्टिंग थोड़ी करनी है, आपने अपना एक सोचना है आइडिया कि जी हाँ कि ठीक है बेस पेपर से गाइडेंस जरूर लें, लेकिन अपना काम करें ना, थोड़ा सा उसमें हल्की फुल्की चेंजेस करें। और पेपर भी तो पढ़ रहे हो ना आप, एक पेपर के अलावा भी पेपर्स पढ़ रहे हो, तो ये काम औरों ने भी किए हुए हैं। तो आपको ओके। एक मिक्स मिक्स एंड मर्ज वाली कोई अप्रोच इस्तेमाल करें थोड़ा सा इसमें। करंट पेपर में या ये बेसलाइन पेपर है, ये किस साल में पब्लिश हुआ है जरा देखें। ये 2015। 15? तो अभी 8 साल हो चुके हैं इस पेपर के पब्लिश होने के बाद। 8 साल में कोई 80,000 पेपर आ चुके होंगे इसी आइडिया के ऊपर। ठीक है। ठीक है, तो अब वो जो 2015 का काम था, वो तो 2015 में तो विंडोज 8 चला करती थी यार। ठीक है, गूगल भी एक्टिव नहीं था, गूगल भी कहीं आगे जाके 2016-17 में शुरू हुआ, उससे पहले तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था। तो अब ये आप सोचो कि दुनिया कितनी आगे चली गई है। जो काम ये आप कर रहे हो ये हो सकता है इससे बहुत बेहतर, मतलब जो मैं आपकी बात मुझे समझ आई है, ये आप गलत भी टाइप करें तो आपको गूगल सारी सर्च ऑप्शंस दे देता है कि जी ये ठीक है, ये ठीक है, आप गलत कर रहे हो। तो आप ऐसी क्या चीज़ करने जा रहे हो जो हुई भी नहीं है? हम्म, गैप तो रहा ही नहीं जो आपने गैप बताए हैं इतने मुझे, मेरा नहीं ख्याल ये सारे गैप एग्जिस्ट करते हैं जो आप बता रहे हैं। इसलिए मेरे भाई इसको ज़रा ना वो करें, लेटेस्ट कामों के साथ अलाइन करें। ठीक है कोशिश करें कि बेसलाइन पेपर जो है आपका पिछले 2 एक साल में आया हो, पब्लिश हुआ हो, ना कि सर। 8 साल पहले हुआ हो। ओके सर। ठीक है, तो आपके आइडियाज़ जो हैं थोड़े ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे काम पे चल चल पड़ोगे जो कि
जो कि बहुत ही पुराना है और लोग उसको जो है ना वो छोड़ चुके हैं। ओके। तो ये करेक्शन जरा लगाएं इसके ऊपर आप, ओके और डिस्कस भी करें अपने सुपरवाइजर से। उससे कितनी दफ़ा मिलते हैं आप वीक में? सर, वीक में 2 टाइम मिलता हूँ। तो ये रमज़ान गैप, वो जो लास्ट लास्ट उसमें नहीं मिल सका था, वो मेरी फैमिली थोड़ी सी वो जो क्लास चलें में ठीक थे। है, मिलें आप उनसे, दोबारा मिलें और ये मेरी वाली जो बातें हैं उनसे डिस्कस भी करें और फाइनलाइज करें इसको। ठीक है। ओके सर। ओके। और बताओ इसके अलावा कोई और चीज़ आपकी प्रॉब्लमेटिक है तो कैन डिस्कस विद मी। नो सर, चल मैम से शेयर करूँगा फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट। ओके, so I ओके, can थैंक see यू। around 7 people sitting in the class. Good. ठीक है जी। ओके, सो जुल्करनैन आप देख लीजिए जो चीज़ें हैं अभी। लेट्स फर्स्ट डिस्कस जो आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, और इफ़ यू वुड लाइक टू क्लैरिफाई एनीथिंग, स्पेशली जो क्लास में बैठे हुए हैं। आई हैव गिवन पेपर टू मारिया, आपको मैंने एक पेपर सजेस्ट कर दिया है, इफ़ यू हैव सीन योर मेल। सर मैंने मेल चेक की थी, मैंने काफी सारी करी थी, पर वैसे आज आप अपनी अगर मेल चेक कर सकें तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जो मैं आपको पहले आपने जो पेपर्स भेजे हैं उनमें कोई पेपर ऐसा नहीं था जिसको आप लेके चल सकें। अभी जो आपने 2 रिसर्च पेपर्स शेयर किए उसमें पेपर 2 रीजनेबल है। आप उस पेपर के इर्द गिर्द में भी और पेपर भी सर्च कर सकती हैं, कोई लेटेस्ट पेपर, या अगर इसको लेके चलना चाहती हैं तो उसको भी लेके चल सकती हैं। वो ज़रा देख लीजिए उसको। ओके जी। सो मारिया, आपने क्लोज कर दिया या आप कुछ और बताना चाह रही थी अभी? ठीक है मेरी मेल। आप आज प्रेजेंट करेंगी या पहले अपने काम को प्रिपेयर करेंगी? सर नहीं, मैं आपको चलें, आप बस इस रिसर्च पेपर को देख लीजिए ना अभी, टेक योर टाइम, आप नेक्स्ट वीक में प्रेजेंट कीजिएगा फिर। बाकी लोग जो बैठे हैं इनमें से किसी का कोई डाउट या कोई ऐसी चीज अभी तक क्लियर ना हुई हो, किसी की कोई टॉपिक क्लैरिटी ना हो, किसी का थीसिस टाइटल फाइनलाइज ना हुआ हो, प्रेजेंट उसने ना किया हो, तो काइंडली वो पहले मुझसे डिस्कस कर सकता है बिफोर वी स्टार्ट द रेगुलर लेक्चर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन था ना, ये जो गैप एनालिसिस और नीट एनालिसिस, जी इसके दरमियान फर्क ये है, क्योंकि मैं अपने सुपरवाइजर से जो मिला था, जब पहले तो मैं गैप एनालिसिस, जब आपने मुझे हमें कोई असाइनमेंट भेजे थे, तो वो मुझे पहले जो है ना, वो गैप एनालिसिस जो मेरा अपना स्टडी है, जो पेपर है, प्रपोजल है, उसके थ्रू कहते हैं कि आप पहले उसको देख लीजिए उसमें क्या गैप है, तो उससे जो फाइंडिंग्स आ जाएंगे तो आप वो गैप एनालिसिस। क्योंकि मैंने कहा कि नहीं, सर ने जो बताया था वो ये था कि आप जो लिटरेचर न्यूज आप देखते हैं जैसे आपके हैं, उसमें से जो गैप्स नजर आए जिस पे आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो वो दैट वुड बी योर गैप एनालिसिस। तो सर ये नीड एनालिसिस और गैप एनालिसिस वाला थोड़ा सा देखिए, इसके बारे नीड में। एनालिसिस जो है ना उस और गैप एनालिसिस में एक छोटा सा फर्क है। नाम इनके बता रहे हैं आपको कि इनमें फर्क क्या हो सकता है। नीड एनालिसिस होती है कि आप ये काम जो करना चाह रहे हैं क्या इसकी रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं है।
मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? सर आप नहीं। हाँ, नीड एनालिसिस होती है कि एक चीज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने अपने ऑफिस में एयर कंडीशनर लगवाना है। तो आप समझते हैं जी कि बहुत गर्मी होती है और मौसम जो है वो आपको परमिट नहीं करता कि आप सुटेबल तरीके से बैठ के अपने ऑफिस में काम कर सकें। तो आप अपने एक रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं कि जी मुझे अपने ऑफिस में एक एयर कंडीशनर चाहिए जिसकी कैपेसिटी 2.5 टन हो, बिकॉज बड़ा कमरा है। ठीक है, और आपकी इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए जिसने अप्रूवल देना है वो आपकी नीड एनालिसिस करेगा कि ओके जी वाकई इस कमरे में ये साइज है, गर्मी इतनी होती है, टेम्परेचर्स ये हैं, और काम जो है वो बेताशा है और उसकी रिक्वायरमेंट है कि ऑफिस में बैठ के किया जाए, तो इसलिए नीड है कि यहाँ पर एयर कंडीशनर लगना चाहिए। तो ये एक नीड एनालिसिस उसने की आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। इसका कोई ताल्लुक गैप एनालिसिस से नहीं है। गैप एनालिसिस इज अ प्योर टर्म यूज इन दी रिसर्च वर्ल्ड वेयर what you try to figure out that existing products and existing technology is not sufficient to solve a problem. Accordingly, what you see, you try to find out all the related research papers, related products, which are solving that particular problem जिस पे आप फोकस कर रहे हैं। और उसमें ये देखा जाता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं या जो एग्जिस्टिंग अप्रोचेज हैं या थ्योरेटिकल तरीके हैं, उनमें क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। सो उन लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स की बेस पे आप कहते हैं कि ओके, नंबर 1 ये काम और किया जा सकता है, नंबर 2 ये काम भी किया जा सकता है, नंबर 3 ये काम भी किया जा सकता है। इस तरीके से आप 5, 6, 10, 15 इवन हजारों किस्म के गैप्स निकाल सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग लिटरेचर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर। उसको हम गैप एनालिसिस कहते हैं। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि गैप एनालिसिस क्या सिर्फ बेसलाइन पेपर का किया जाता है या और पेपर्स का भी किया जाता है? तो इसका जवाब यह है कि गैप एनालिसिस और तमाम रिसर्च पेपर्स का किया जाता है जो कि आपके रिलेटेड होते हैं। यू नेवर डिक्लेयर एनी पेपर टू बी योर बेसलाइन पेपर। आप ऑल्दो लेके चल रहे होते हैं, बट ये अंडर हैंड होता है। आप इसको अनाउंस नहीं करते कि ये मेरा बेसलाइन पेपर है। देयर इज नो सच थिंग एज बेसलाइन पेपर इन लिटरेचर एंड रिसर्च। इट इज जस्ट फॉर योर ओन ईज एंड कंफर्ट कि आप फोकस एक पे शायद ज्यादा कर रहे होते हैं, बट यू नेवर अनाउंस इट। ठीक है, और उस पर फोकस भी क्यों कर रहे होते हैं कि दैट इज इन योर व्यू इज द स्टेट ऑफ द आर्ट। ये स्टेट ऑफ द आर्ट का टर्म याद रखें आप कि जब भी आपने कोई काम करना होता है ना, तो आपसे मार्केट में कोई चीज सर्च करने गए हैं तो हमेशा आप देखेंगे कि जी एक एक प्रोडक्ट है, फिर दूसरी प्रोडक्ट है, एक ही तरह की प्रोडक्ट है, फिर तीसरी प्रोडक्ट है। तो आपकी कोशिश होगी कि मैं बेस्ट के ऊपर पहुंचने की कोशिश करूं पहले तो आपसे एसी की बात कर लेते हैं हम कि जी आप देखेंगे ओके जी एक डाउलंस का एसी है, एक हायर का एसी है, एक जो है वो जनरल मोटर्स का एसी है, एक जो है मित्सुबिशी का एसी है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? कलीम साहब आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं रिपीट करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप मार्केट भी जाते हैं ना, मैं अब इसको अगेन रिसर्च से थोड़ा हट के बात, एक इनफॉर्मल रिसर्च की बात कर रहा हूँ। इनफॉर्मल रिसर्च में भी आपकी कोशिश होगी कि जी मैं ओके 5-6 दुकानों का विजिट करूं, 5-6 एसीज देखूं और फिर फिगर आउट करूं यार ये सबसे बेस्ट एयर कंडीशनर है जो कि हर लिहाज से बिजली की बचत भी कर रहा है और परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी है और ड्यूरेबिलिटी भी है और ये लॉन्गर रन में चलेगा, रेपो भी अच्छी है। 5-6 आपके नज़र में परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स होंगे, उसकी बेस पे आप जजमेंट कॉल देंगे ओके जी नंबर 1 एयर कंडीशनर ये है, नंबर 2 जो है वो ये बनता है, नंबर 3 ये बनता है। तो आपके लिए अब डिसीजन उसकी बेस पे आसान हो जाएगा टू गो फॉर योर चॉइस बेस्ड ऑन दी बेस्ट। तो वो बेस्ट जो है वो आपका बेस लाइन डिसीजन है कि यार ये तो मेरा मिनिमम है, इससे ऊपर की चीज मैंने ढूंढनी है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उस बेस लाइन तक पहुंचने के लिए आपने और 10-15 चीजें नहीं देखी। नाउ सेम इज द केस विद रिसर्च पेपर्स। यू रीड 10, 20, 30, 40 research papers which are solving the same problem on which you are focusing, and you try to find out one research paper which fulfills all of your requirement and or closer to your requirements to reach to that solution.
एंड यू डिक्लेयर ओके यार दिस इज द बेस्ट वन एंड दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट, ये मेरा मिनिमम टारगेट है, बट इससे ऊपर जाना है मैंने. But once the question comes of gap analysis, then gaps are found overall, not only in one thing. So that baseline paper also becomes also the one which you read and study and figure out कि इसमें क्या gaps हैं, but you also read other research papers कि okay जी इसके अलावा भी gaps हैं. तो ये overall gaps ये 4-5 बन रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर फिर आप अपना proposed method suggest करते हैं कि मैं इस तरीके से करूँगा तो मैं इन 4 गैप्स में से 2 को, 1 को, 3 को हल कर लूंगा. कलीम साहब, आपके सवाल का जवाब मिला आपको या कोई डाउट है? जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई. सर क्लियर हो गया सर, थैंक यू सो मच. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. अभी ये क्लास भी मीटिंग फिनिश होने वाली है. वी मीट अगेन राइट, नेक्स्ट सेशन में दोबारा काइंडली ज्वाइन कीजिएगा.